ابھی آ رہی ہے سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کی جو اینیورسری، آپ کس طرح منا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ 6 جون اور سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کی شہادت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس دن کے بعد ہماری ہسٹری بدل جاتی ہے، ہمارے لیے سارے مطلب بدل جاتے ہیں۔ ہم نے کیسے دیکھنا ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے، کیسے ڈیفائن کرنا ہے ساری دنیا کو، ہمارا ریلیشنس اور کمیونٹی سے، نیشن سے، سب کچھ کے میننگ ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے اتنا مہتوپورن ہے، اس دن سے ہم نے پریرنا بھی لینی ہے، ڈائریکشنز بھی لینی ہے اپنے فیوچر کے لیے۔ دربار صاحب سکھوں کے لیے صرف ایک گردوارہ نہیں ہے، ہمارا کیندری استھان ہے، ایک درا ہے جس کے دوار پر سکھی گھومتی ہے۔ یہ ہمارے لیے مکہ جیسے مسلمانوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے جیسے اس سے بھی زیادہ۔ ساری ہسٹری میں سکھوں نے اسے ایسے ڈیفینڈ کیا ہے کہ کہیں بھی آپ کو ملتا نہیں کہ اس طرح کسی نے صدق سے شہادت میں دی ہو۔ ہر جو پلیٹ ہے دربار صاحب کے نیچے جو سٹون لگا ہو، ہر سٹون کے نیچے ہزاروں سر ہاشیاب اور شہید ہو، اور ہر حکومت میں، چاہے وہ مغل ہو، انگریز ہو، یا اس سمے کی جو حکومت ہے، انہوں نے سدا کبھی نہ کبھی دربار صاحب پر اٹیک کیے، بہت بار اٹیک ہوئے ہیں۔ دربار صاحب کو پوری طرح ملیمیٹ کر دیا گیا، سروور کو لاشوں سے پور دیا گیا، پر سکھوں نے سدیو ہی کچھ مہینوں کے بعد اسے مڑ بنایا بھی، اور اپنی ہسٹری میں اس سے پریرنا اور سیکھ لے کر آئے۔ اور یہ دربار صاحب پر حملہ کیوں ہوتا ہے بار بار، ساری حکومتیں کیوں کرتی ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ حملہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کو پکڑنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ جس کارن ابدالی نے کیا حملہ، نادر شاہ نے کیا، اسی کارن 84 میں حملہ ہوا۔ بیسک کارن ہے کہ جو گرو گرنتھ صاحب سکھاتا ہے سربت کے بھلے کے لیے ایک اسٹرگل، ایک ایسا نظام، ایک ایسا نقش، ایسا سماج، ایسا راج جو سب کے بھلے کے لیے ہو، جہاں کوئی جات پات نہ، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، سب کے لیے ایکول اپرچونیٹیز ہو۔ یہ سب جتنے بھی رجیمز ہیں اس کے خلاف یہ بیسک کنٹراڈکشن، اسی کے لیے یہ حملہ ہوا۔ صرف دربار صاحب پر نہیں، 36 اور گردواروں پر ہوا، اور یہ حملے کی تیاری 80 میں ہی اندرا گاندھی کر رہی تھی۔ 82 میں اس کا ماڈل دہرادون کے پاس بن چکا تھا، اور سوچ سمجھ کر حملہ ہوا۔ یہ حملہ سکھی پر، سکھ پنتھ پر، ہماری آئیڈینٹی پر، ہمارے کلچر پر، اس پر حملہ ہے، نہ کہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالے۔ سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالے ہمارے مہان شہید ہیں، ان سموں کے ہمارے جیون کے ویاخیا کار ہے کہ ہمیں کیسے جیون ویت کرنا ہے، ہمارے لیے آزادی کیا ہے، غلامی کیا ہے، نیشن کیا ہے، نیارا پن خالصے کا کیا ہے، ہماری قومیت کیا ہے، ہمارا راج کیا ہے، وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ وہ ہمارے ہیرو ہیں، نائک ہیں، اور 25 برس ہو جائیں گے ابھی 6 جون کو، ایک جنریشن کو جگانے کا۔ سرکار کا پوری کوشش رہی کہ سکھ 6 جون اور سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالے بھول جائیں، اور اب بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا سارا فیوچر ان 2 نوڈل پوائنٹس کے آلے دوالے گھومتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہماری زندگی کے سمان ہے۔ اور اس بار ہم 31 مئی کو ہم نے چنڈی گڑھ میں سیمینر کیا تھا، اور پولیٹیکل تھاٹ آف سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کی سیاسی وچاردھارا کیا تھی، اس کے پیچھے کیا وہ مہان وچار تھے سوسائٹی کے، راج کے، جس کے لیے انہیں شہید کیا گیا۔ اور ہم سارا سال اگلی 6 دن تک کسی نہ کسی روپ میں اسے منائیں گے، اور سیمینار ایسے ہوں گے ریلیٹڈ سبجیکٹ پر پنجاب کے ڈفرینٹ جگہوں میں۔ کچھ کتابیں ہم ریلیز کریں گے، کچھ کیسٹس، کچھ CDs، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ماسک اٹیک پروگرام بھی پارٹی کی اور سے کریں گے۔ یہ ایم ہے کہ ہم آپ سیکھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ
6 जून का क्या मतलब है हमारे लिए? संत जरनैल सिंह में कौन थे? और दूसरे सबको एजुकेट करें, हमारी कम्युनिटी को और सारे इंडिया की सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई लुकाई गई है और सच्चाई लुक नहीं सकती। ये हम सारा साल करेंगे, इससे आगे भी करेंगे। और मास कंटैक्ट प्रोग्राम गाँवों में बहुत जल्द ही शुरू करेंगे, जो संत जी का मैसेज और 6 जून का मैसेज और सिक्खी का मैसेज लोगों तक लेके जाएं। और जो इस वक्त पंजाब और सिख कौम के आगे बहुत ही बड़े प्रश्न हैं, इस वक्त प्रश्न हमारे रिलीजन के हैं, गुरु ग्रंथ साहब के हैं, हमारी आइडेंटिटी के हैं, हमारे डिफरेंट कल्चर के हैं, हमारी यूनिकनेस के, हमारी सॉवरेनिटी के। और ये क्वेश्चन इतने अहम हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरह पतितपना, नशे, उदासी, गरीबी अमीरी का जो डिफरेंस है, करप्शन, इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन, आर्थिक जो नेचुरल सोर्सेज का लूट, हर तरफ लूट का राज, बिल्कुल माफिया राज, इससे सिख कौम भी और सारा पंजाब भी तबाही के कगार पर खड़ा। और इस सब का कारण ही यही है कि हम हमारे गुरु ग्रंथ साहब की आइडियोलॉजी, हमारे शहीद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले और 6 जून का महत्व भूलते जा रहे हैं। हम ये सारा अपनी कौम को, सब लोगों को याद कराएंगे, उससे प्रेरणा लेंगे, सेध लेंगे और गुरु ग्रंथ साहब के साथ हमारी विरासत, शहीदों की शिक्षा के साथ उनके दर्शन के साथ यहाँ पर वैसा ही समाज और राज सिरजे। पहले तो काफ़ी समय तक सिख भी इस चीज़ से पीछे रहे, और आज मतलब क्या ऐसा क्या खास आ गया कि अब इस चीज़ को आप मतलब गांव-गांव तक संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? ये बात नहीं कि सिख पीछे रहे, सिख को पीछे रखा गया, क्योंकि जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले कहा करते थे, उनके जो भी वाक़यात है बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते थे कि यहाँ से गुलाम है और मैं उनको गुलामी से याद करूँगा। और स्टेट का और पंजाब में जो रूल करते हैं कॉलोनीज या अदर पीपल, उन सब का यही कोशिश रही लगातार स्टेट की होती कि हम अपने शहीदों को, अपने आदर्शों को, अपने निशानों को भूल जाए। स्टेट काम करती है, उसने बहुत कोशिश की, वो कर रहे हैं, उसका असर हुआ लोगों पर कि लोग कुछ भूले, पर अंदर सारी बात है। क्योंकि जो भी सिख है उसका गुरु के साथ रिलेशन, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का रिलेशन वैसे का वैसे ही आप देख सकते हैं कि जितने नौजवान हैं, चाहे उनके बाल से पर ना भी हो, उनके जो मोबाइल है उस पर जो टोन होगी तो संतों की स्पीच होगी। किसी भी बड़े फंक्शन में संतों के पोस्टर सबसे ज़्यादा दिखते हैं लाखों में। और जो अजायबघर में उनकी तस्वीर की बात हुई, जो सारी कौम ने लगाई, हमने डिसाइड करना है कि हमारी शहीद कौन है, उस बात से कैसे सारा स्टेट हिल गया। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जब तक वो जिए, सारे इंडिया में, सारी दुनिया में उनकी एक रेलिवेंस बड़ी इंपॉर्टेंस है। और उनकी शहादत के बाद उनकी रेलिवेंस बढ़ी और आगे आगे और बढ़ेगी, जब जब लोग, सिख और सारे लोग वो समझ आएंगे कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थी, कैसे एक महामानव, महानायक थे इन सब। जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिखों की एक आइडेंटिटी नहीं है, तो मतलब किस चीज़ की सिख आइडेंटिटी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि क्या कुछ चेंज होना चाहिए? सिखों की आइडेंटिटी तो बड़ी यूनिक है, खासा मेरा रूप है खास, अकाल पुरख ने आप दी। जितनी आइडेंटिटी हमारी यूनिक है, दुनिया में किसी की यूनिक नहीं। बात ये है कि उस आइडेंटिटी पर इस देश में बहुत बड़ा हमला आज से नहीं, बहुत शुरू से शुरू है। जब से गुरु नानक साहब ने ये इस राह पर उनके 1469 से आज तक सदा ही जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं, जो ब्राह्मणिज्म है, जो लीटिज्म है, जो ये करप्ट सिस्टम है, उसने सदा ही
اس کو کبھی بھی نہیں مانا کہ یہ यूनिक रिलीजन है, सेपरेट रिलीजन है, इनका अपना वे है. उन्होंने सदा ही ये माना कि ये हमारा एक अंग ही है. वो अब भी आप देखते सकते हैं, जैसे हल्की अडवाणी की जो किताब है उसमें वह लिखते हैं कि सिख एक फ़िरका है हिंदू धर्म का, उनकी रक्षा के लिए बना है, जैसे कि जो तो बाजू होता है, दिमाग कहीं और है. और वही धारणा शुरू से चलती आ रही है. वही धारणा है जो दरबार साहब के अटैक हुआ, उसके पीछे भी वही मनौत थी. अब भी वही है, पहले भी वही से, उन्होंने कभी नहीं बदली. नहीं तो हमने अपनी धारणा दृढ़ करनी है, सजीव करनी है, सामने लेकर आनी है काम को, वो सबसे बड़ी जरूरत है. उसके लिए इन समूह में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले हमारे सबसे बड़े शहीद, सबसे बड़े नायक हैं. उससे हमने प्रेरणा लेनी है, गाइडेंस लेनी है उनकी शहादत से. और ये हम एक हर सिख घर के लेकर चलें. तो किस तरह का आप गाँव में और शहरों में प्रचार कर रहे हैं ताकि लोग उनकी जो है फीलिंग्स सच्चाई क्या है? अगर आप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को समझ आएंगे, ये समझ जाएंगे कि 6 जून को अटैक क्यों हुआ, आप सब बात समझ जाएंगे उसके पीछे क्या. यही बात घर घर लेकर जाने की जरूरत है, ताकि जो आज पंजाब में और सारे इंडिया में एक बहुत ही डीजेनरेट और करप्ट रूलिंग सिस्टम है, जिसकी ये सारी पार्टियाँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल है, मेक्स नो डिफरेंस, उनकी बेसिस सेम है. वो एक ही सिस्टम के वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे, उसको ही perpetuate. उसके बीच आम आदमी की कोई जगह नहीं, गरीब की, किरती की, सब मिनॉरिटीज़ की सब दबे कुचले जा रहे हैं, और कुछ लोग सब पर राज कर. और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले सारी मनुष्यता के लिए, सारी दुनिया के लिए एक जानवर राह दिखाने वाले थे. ये बात हमने सबको समझानी है. ये ट्रुथ है, अगर सारे समझेंगे तो इस सिस्टम को उठा देंगे. दूसरा जो सिख खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, क्या वो चीज़ आप आज भी उस पर स्टैंड करते हैं कि खालिस्तान आना चाहिए? सिख की डिमांड की बात नहीं है जी, ये नेचुरल डेवलपमेंट. हर सिख हर रोज अरदास करते हैं, हम अब भी अरदास करके आए हैं, राज करेगा खालिस. हर सिख करता है. जो सिखों में खुद मुख्तियारी और सॉवरेनिटी है, बादशाही है, ये हमने किसी से लेनी नहीं, ये हमको गुरु ने कालपुरुष ने दी हुई. ये कोई डिमांड नहीं, ये हमारा इमिनेंट है, इंट्रिंसिक है, जिसको आना ही है, जिसको फ्लावर और एवोल्यूट होकर उसको दुनिया में आना ही. ये तो डिमांड की बात नहीं, ये तो हक से भी आगे की बात. एक ऐसा राज, ऐसी सोसाइटी जो आइडियल हो सबके लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं जिनके दाढ़ी और केश, सारी दुनिया आइडियल एंड सोसाइटी एंड स्टेट. थोड़ा सा अंदर ठीक है. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਡੀ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ? ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਅੱਛਾ, ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਐਸਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਭੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ RDX ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ 7 ਦਸੰਬਰ. ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, 2 ਸਾਲ अमेरिकन जेल से है. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। हाँ जी, आपका नाम? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, यहाँ आप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की बस्ती बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में, मतलब ये हम नहीं कह रहे, मतलब लोग कहते हैं कि उनके मन में भी भिंडरांवाले के प्रति एक मतलब डर है कि वो कहते हैं कि वो आतंकवादी थे और उनसे वो पीड़ित हैं, उनके कई पारिवारिक मेंबरों की जान भी चलेगी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि क्या उनकी ऐसी कोई छवि थी? नहीं, बिल्कुल उनकी ऐसी कोई छवि नहीं थी। वो उनका जो बैकग्राउंड था वो धार्मिक था। बाद में उन्होंने ये सोचा कि जो सिख कौम है इसको अपनी राष्ट्रीय शक्ति की जरूरत है और उन्होंने इसके लिए ही काम किया और बिल्कुल यही बात है जो लोगों को समझाने वाली है, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे पे थोपी है कि हम अब हमारे पर आतंकवादी का लगाया है। और अगर यही बात हम अगले साल लोगों को समझाने जा रहे हैं कि रियलिटी क्या है, क्यों हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमारे को बार बार आतंकवादी डिक्लेयर कर रही है और बात क्या थी इसके ऊपर अटैक करने की। देखो, इन्होंने हरमंदर साहब पे अटैक किया, उनको कहा कि उधर आतंकवादी से इसके लिए अटैक किया, पर इन्होंने 36 और गुरुद्वारों पर भी नाम अटैक किया जिधर कोई भी नहीं था। ये बात लोगों को समझाने वाली है कि उन्होंने उन दूसरे 36 गुरुद्वारों पर क्यों अटैक किया, उधर कौन था। इसके बाद में पीछे जो रियलिटी है ये लोगों को नहीं पता। हिंदुस्तान ने वो रियलिटी खत्म करना चाहती है, हम वो रियलिटी को खोज के लोगों के आगे ले जाएंगे। सो कोई बात नहीं ऐसी कि वो आतंकवादी थे, जहाँ ना सिर्फ कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। तो जैसे आपका मामला, आप पर क्यों केस ये RDX का चलाया या वहाँ आपको अमेरिका में भी जेल जानी पड़ी, इसके पीछे क्या? बस इसका भी मतलब यही था कि हम जो संतान की विचारधारा थी उसके हम न्यायी थे और उसके लिए ही हम अपने देश कौम की आइडेंटिटी के लिए और अपनी देश की जो हमारा मान सम्मान है, अंक थी हमारी जो सिखों की, उसके लिए लड़ रहे थे। और उसकी इवज में हिंदुस्तान ने गवर्नमेंट ने हमारे पे झूठे केस डाले और इसके लिए मुझको 15 साल जेल में रहना पड़ा। तो अभी आप लोगों में किस तरह जाके जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले उनके बारे में लोगों को प्रचार कर रहे हैं, किस तरह प्रचार हो रहा है और क्या लगता है कि लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे? देखो, हमें पूरा ये उम्मीद है कि लोग हमारी बातों पे जरूर विश्वास करेंगे। हम जो रियलिटी है, जो इसके पीछे जो लोग हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने लोगों को दिखाया, एक्चुअली वो नहीं है। इसके पीछे और है, इसके पीछे और बात थी। वो बात जो इसके पीछे थी रियलिटी में, वो हम लोगों के पास लेकर जा रहे हैं और लोगों को हम बताएंगे और लोग उससे उस बात से हमें पूर्ण आस है कि हमारे साथ मोढे से मोढा लगा के जो हमारा राष्ट्रीय निशाना है, जो हमारी कौम का असली निशाना है, वो हम जरूर पाएंगे। तो क्या आपका क्या टारगेट क्या है, क्या निशाना है, मतलब क्या आप चाहते हैं? वो तो बता ही दिया है कि हम एक ऐसा राज चाहते हैं जो गुरु नानक देव जी साहब महाराज ने हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने हलेमी राज की बात की है, वो राज की प्राप्ति की हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या होगा अगर मान लीजिए कि वो राज आ जाता है आपकी कोशिश, उसमें क्या होगा? आज हिंदुस्तान में देखो करप्शन का बोलबाला है। कोई सोसाइटी समाज में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अच्छा हो रहा है। राजनीति देख लो, उसमें लूट घसूट हो रही है, माफिया, जो लोग कितने लोग इतने MP हैं यहाँ पे जो बदमाश हैं, जिन पर कितने कत्लों के केस चल रहे हैं। बिजनेस है, वो व्यापारी वर्ग है, वो लूटा जा रहा है। करप्शन का इतना बोलबाला है हिंदुस्तान में। हम ऐसा राज देना चाहते हैं, हम ऐसे सिस्टम की बात करना चाहते हैं जो गरीबों के लिए हो, मजलूमों के लिए, उसके उधर बराबरी हो, ना कि कोई अमीर ना कोई गरीब हो। सो ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं।
ایک یہ چیز بتائیں کہ کچھ ہی سمے میں جیسے بھنڈرانوالے کے لٹریچر کی ڈیمانڈ کافی مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے، تو مطلب لوگ بس جگہ جگہ پہ تصویریں بھی خرید رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ ہیں وہ ان کی سچائی کو سمجھنے لگے ہیں کہ وہ کیا شخصیت تھی، انہوں نے کس لیے جو راجنیتک جو کسی دھرم جد مورچے کی بات کی ہے، کس کے لیے کہ اب سچائی ان کو سامنے آنے لگی ہے، اور اسی سے ہم کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں وہ سب کچھ صاف ہو جائے گا۔